उसको कहते हैं, इसको कहते हैं सोल। तो सोल इज अ कॉलॉइड इन विच टिनी solid particles are dispersed tiny solid particles are dispersed in a tiny solid particles are dispersed in a liquid medium, full stop. Example है ink soap solution, ink soap solution, comma starch solution, ink soap solution, comma starch solution, and most paints सेकंड नोट करेंगे सॉलिड सोल। आप ये सातों टाइप का लिखेंगे, फिर मैं एक एक करके सारी चीज आपको समझाऊंगा। पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। सॉलिड सोल, इसमें कहेंगे सॉलिड सोल इज अ कॉलॉइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स solid soul is a colloid in which solid soul is a colloid in which solid particles are dispersed in a solid medium. Solid particles are dispersed in a solid medium. Are dispersed in a solid medium. Full stop. Example है colored gemstones. Example है colored gemstones, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ रूबी, RUBY रूबी। तीसरा तीसरा टाइप का कॉलॉइड क्या होता है वो लिखें, एरोसोल। एन एरोसोल इज अ कॉलॉइड इन विच AERO एरो सोल, इसमें लिखेंगे एन एरोसोल। एन एरोसोल इज अ कॉलॉइड An aerosol is a colloid in which a solid or liquid is dispersed in a gas. In which a solid or liquid is an aerosol is a colloid in which a solid or liquid is dispersed in a gas, including air. Is dispersed in a gas. ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ इंक्लूडिंग एयर। इंक्लूडिंग एयर। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, स्मोक, स्मोक, और स्मोक के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे सूट इन एयर, SOOT, सूट इन एयर, and automobile exhausts, EXHAUSTS, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, ये हमारा थर्ड टाइप का हो गया, थर्ड टाइप का कॉलॉइड। टोटल 7 टाइप के होते हैं, अभी 4 टाइप के और लिखेंगे।
फिर एक एक करके सारे समझेंगे हम। तो ये हमने तीन टाइप के लिखे, एरोसोल, और जैसे ये लिखा है स्मोक एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। फिर इसी में ना, यहीं से आगे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल्स, आर एग्जांपल्स ऑफ आर एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल्स, आर एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल्स in which a liquid is dispersed, in which a liquid sorry in which a solid is dispersed in a gas, in which a solid is dispersed in a gas, in which a solid is dispersed in a gas। फिर दूसरा एग्जांपल लिखेंगे आप, दूसरा एग्जांपल लिखेंगे हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स। हेयर हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट एंड fog, mist and clouds are examples of aerosols, are examples of aerosols in which a liquid is dispersed in a gas, in which a liquid is dispersed in a gas। फिर फोर्थ टाइप लिखेंगे इमल्शन। इमल्शन इमल्शन में लिखेंगे एन इमल्शन इज अ colloid in which minute droplets an emulsion is a colloid in which minute droplets of one liquid are dispersed in another liquid। Minute droplets of one liquid are dispersed in another liquid, of one liquid are dispersed in another liquid which is not miscible with it, which is not miscible, which is not miscible with it। Example, milk, butter and face cream। Example, milk, butter
and face cream. Fifth, foam. 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 Foam is a colloid in which a gas is dispersed in a liquid medium. Foam is a colloid in which a gas is dispersed in a liquid medium. Foam is a colloid in which a gas is dispersed in a liquid medium. Example, fire extinguisher foam, soap bubbles. Fire extinguisher foam, comma, soap bubbles. Fire extinguisher foam, comma, soap bubbles, comma, comma, shaving cream, etc. उसके बाद सिक्स्थ है सॉलिड फोम. सॉलिड फोम. सॉलिड फोम में है द सॉलिड फोम इज अ कॉलॉइड इन विच अ गैस the solid foam is a colloid in which the solid foam is a colloid in which a gas is dispersed in a solid medium. In which a gas is dispersed in a solid medium. In which a gas is dispersed in a solid medium. Example, foam rubber, comma, sponge and bread. Sponge and bread. सातवीं टाइप जेल. जेल इसमें लिखेंगे द जेल इज अ सेमी सॉलिड कॉलॉइड द जेल इज अ सेमी सॉलिड कॉलॉइड. The gel is a semi-solid colloid in which there is a continuous network of solid particles. In which there is a continuous network in which there is a continuous network
of solid particles dispersed in a liquid. Of solid particles dispersed in a liquid. Example: jelly, gelatin, and hair gel. Jelly, gelatin, and hair gel. ठीक है बेटा, ये 7 टाइप हैं। ये जो है, अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहां तक आप सबने नोट कर लिया होगा ये। अब जरा देखिएगा, कॉलॉइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 7 ग्रुप्स। तो जो पहली टाइप का कॉलॉइड है उसको हम बोल देते हैं सोल, SOL, सोल। सोल इज अ कॉलॉइड इन विच टीनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। टीनी का मतलब होता है छोटा, सॉलिड पार्टिकल्स छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, जब लिक्विड में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, चारों तरफ फैले हुए होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सोल। ऐसे कॉलॉइड को हम बोल देते हैं सोल। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? इंक हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, और ज्यादातर जो पेंट्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स पूरे लिक्विड मीडियम के अंदर फैले हुए होते हैं, तो ऐसे कॉलॉइड को हम बोल देते हैं सोल। सभी को क्लियर है? पहला एग्जांपल बताइए। नो सर। दोबारा बताता हूँ कि सोल एक ऐसा कॉलॉइड होता है जिसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड मीडियम में चारों तरफ फैले हुए होते हैं। चलिए एक इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ऐसा होता है कि जब हम मान लीजिए कोई भी, अगर हम पेंट देखते हैं ना, अगर मान लीजिए आप अपने घर की दीवार भी देखोगे और दीवार पर जो पेंट हुआ हो रखा है, उस पेंट को भी अगर आप गौर से देखोगे तो आपको उसमें बिल्कुल एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे प्लेन एक शीट लगी हुई हो। आपको उसमें छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे। तो वहां पर भी क्या है कि बहुत छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, वो पेंट का जो एक सॉल्यूशन तैयार करा गया था, जो लिक्विड था, उस लिक्विड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब डिस्पर्स्ड थे। तो जिसमें एक ऐसा कॉलॉइड जिसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड मीडियम में चारों तरफ फैले हुए होते हैं, तो उसको, ऐसे कॉलॉइड को हम बोल देते हैं सोल। और इसका एग्जांपल है इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, और ज्यादातर पेंट्स, मोस्ट पेंट्स। अब आप ये कहेंगे इंक कैसे? तो जो फाउंटेन पेन में इंक डाली जाती है ना, उस फाउंटेन पेन वाली जो इंक है उसको आप किसी भी प्लास्टिक की शीट पर या कहीं पर भी फ्लोर पर, अगर आप उसकी 1 या 2 ड्रॉप्स गिरा देंगे और उसको सूखने देंगे, तो जब आप सूखने देंगे और फिर उसको साफ करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि एक पाउडर सा बन गया उसका। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो एक ऐसा लिक्विड था जिस लिक्विड के अंदर एक इंक का पाउडर जो है, पाउडर्ड फॉर्म में इंक जो है वो उसके अंदर मिक्स्ड थी। तो पाउडर क्या है? पाउडर भी तो एक सॉलिड है ना। तो अगर मैं पाउडर की बात करूं, तो पाउडर को अगर हम फैला दें, कहीं किसी सॉलिड सरफेस पर फैला दें, तो पाउडर को आप देखोगे उसके छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो उससे मिलकर बना होता है पाउडर। तो इंक जो है, इंक भी पाउडर को जब लिक्विड में मिक्स कर देते हैं तो वो इंक बनती है। अब अगर इंक की एक बूंद कहीं मैंने फर्श पर गिरा दिया, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप मैंने गिरा दिया, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि वो जो इंक का वाटर होता है वो तो सारा इवेपोरेट हो जाता है, एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज ओनली दैट पाउडर ऑफ इंक। फिर वो जो इंक उस पर सूख गई है, उसको जब हम फिंगर से या किसी छोटे से कपड़े से साफ करने की कोशिश करते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि एक बारीक सा पाउडर रह गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि पानी के अंदर इंक का पाउडर मिक्स्ड था। तो ऐसे कॉलॉइड को हम बोल देते हैं सोल। समझ गए? यस सर। अब मैं बात करता हूँ बेटा सॉलिड सोल की। दूसरा जो है, सॉलिड सोल इज अ कॉलॉइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम, जिसमें सॉलिड पार्टिकल ही दूसरे सॉलिड के अंदर मिक्स्ड होते हैं। जैसे कि जो अंगूठियों में वो पहनते हैं ना, जिसको नगीना बोलते हैं या जेम्स बोलते हैं, वो जो अंगूठी के अंदर पहनते हैं, तो नग भी बोल देते हैं उसको। तो जैसे कि एक रूबी होता है और पन्ना होता है,
और भी अलग अलग तरीके के नग होते हैं जिनको अंगूठी के अंदर पहना जाता है, रिंग के अंदर। तो वो जो कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं, अगर ऐसा आपने किसी के भी हाथ में अंगूठी में देखा हो, ऐसा जो नग होता है जिसको हम जेम बोल देते हैं, तो उसको अगर आप गौर से देखोगे तो वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है और उसके अंदर छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई देते हैं। वो छोटे छोटे डॉट्स क्या हैं? वो दूसरा सॉलिड पार्टिकल है जो उस पहले सॉलिड पार्टिकल के अंदर मिक्स्ड है। समझ गए? तो जब सॉलिड एक सॉलिड के अंदर मिक्स्ड होता है तो ऐसे कॉलॉइड को हम बोल देते हैं सॉलिड सोल। बताइए, समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद तीसरा देखते हैं एरोसोल Yes, एंड sir. ओके। एन एरोसोल इज अ कॉलॉइड इन विच अ सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस। जब गैस के अंदर सॉलिड मिक्स कर दिया जाता है, एग्जांपल स्मोक। स्मोक क्या है? और लिखा हुआ है सूट इन एयर। तो स्मोक का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर तंदूर जल रहा है, तंदूर होता है ना जिसके अंदर रोटी बनाई जाती है, तो उसमें से ब्लैक ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। तो जहां पर अगर मान लीजिए जहां पर वो धुआं जा रहा है, जिस चिमनी के रास्ते वो किचन से बाहर निकल रहा है, उस चिमनी को अगर आप देखेंगे तो उस चिमनी पर छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स जमा हो गए हैं। वो ऐसा क्यों होता है? कि जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसके अंदर जो बर्न्ड कार्बन होता है, जला हुआ कार्बन होता है। आप उसके अंदर कोल जलाते हैं, कोयला, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन। या आप उसके अंदर लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जो है वुड, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो वो जो कार्बन जलता है, तो उस कार्बन के जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स छोटे छोटे, जिसको आप राख बोल देते हैं, ऐश बोल देते हैं, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर मिक्सड होते हैं। तो अगेन कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम ऐश बोल देते हैं, वो किस में मिक्सड है? एयर में मिक्सड है। और जब वो एयर में मिक्सड है तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि कार्बन क्या है? सॉलिड, कार्बन के पार्टिकल्स। और वो किस में मिक्सड है? एयर में, यानी कि गैस में मिक्सड है। तो जब हमारा ये स्मोक जो है, ये एक एग्जांपल है सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ गैस, यानी कि कार्बन एक सॉलिड है और वो किस में मिक्सड है? वो गैस में मिक्सड है। तो ये एग्जांपल हो गया बेटा किसका? एरोसोल का। एरो का मतलब क्या है? एयर। और सोल का मतलब क्या है? सॉल्यूट। ठीक है? तो एयर के अंदर जब सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्स्ड होते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ये भी ऐसा ही है। अगर कोई कार है बहुत दिनों से खड़ी हुई है, उसको हम स्टार्ट करते हैं, तो खास तौर पर सर्दियों के दिनों में जब इवेपोरेशन उतना फास्ट नहीं होता, तो अगर कार के अंदर से धुआं निकलता है या ट्रक के अंदर से धुआं निकलता है, तो जब धुआं निकलता है तो आप देखेंगे जब वो स्टार्ट होती है तो शुरुआत में काले रंग का धुआं निकलता है। आप किसी जनरेटर को स्टार्ट होते हुए देखेंगे तो उसमें से भी काले रंग का धुआं निकलता है। तो और फिर उसके बाद में वो स्मूथ हो जाता है, फिर वो ज्यादा ऐसा आपको धुआं नहीं दिखाई देता। तो वो धुआं जिस सरफेस पर बार बार टच होता है ना, बाई चांस कोई वॉल है या कोई फ्लोर एरिया है, तो वहां पर टच होता है तो वो एरिया काले रंग का हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ऐसा क्यों? कि वो जो ऑटोमोबाइल के अंदर से धुआं निकल रहा है ना, उस धुएं के अंदर भी कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। क्योंकि चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, ये सब कार्बन से ही मिलकर बनते हैं। सभी को क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ये बोलते हैं, यहाँ पर हमने कहा था कि इन विच अ सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस। जब लिक्विड किसी गैस के अंदर डिस्पर्स्ड होता है, मतलब फैला हुआ होता है, जैसे कि हेयर स्प्रे में भी क्या होता है कि वो लिक्विड होता है। जब हेयर स्प्रे बालों पर कोई मारता है तो बाल एकदम से गीले हो जाते हैं, भले ही वो सूखे हुए हों, लेकिन वो एकदम से गीले हो जाते हैं। लेकिन वो आए कैसे? हेयर स्प्रे को आपने मारा तो एयर के अंदर लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स स्टोर्ड थे और वो एयर के अंदर स्टोर्ड था लिक्विड, तो हेयर स्प्रे हो गया। जहां लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन एयर, जहां लिक्विड एयर के अंदर मिक्स होता है। उसी तरीके से फॉग, फॉग क्या होता है? जो कोहरा होता है। मिस्ट क्या होता है? वो भी कोहरा होता है। तो आप ये देखिएगा कि कभी आप कोहरे में पैदल चलकर देखिए, 1 किलोमीटर के करीब लगभग, या 100 मीटर 200 मीटर चल के देखो, तो ही आपको लगेगा कि फॉग तो ऐसा लगता है जैसे व्हाइट कलर का धुआं धुआं हो। लेकिन जो आपने कपड़े पहन रखे होते हैं, जब आप वहां से चलकर अपने घर पर या किसी भी जगह पर आप जाते हैं, तो आप टच करके देखें अपने कपड़ों को कंधे पर, तो आपको लगता है कि वो गीले गीले हो गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फॉग होता है वो भी लगता तो ऐसा है जैसे एयर है, जैसे कि धुआं हो व्हाइट कलर का, लेकिन उसके अंदर वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं। सेम एग्जांपल जो है वो क्लाउड का है। क्लाउड में भी एयर जो है वो पानी की बहुत सारी ड्रॉपलेट्स को एक साथ इकट्ठा करके लेकर जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो समझ में आ गया बेटा ये वाला भी एरोसोल? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब एक तरीके के लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स्ड होती हैं, जो कि इजीली मिसिबल नहीं होती, मिसिबल मतलब आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होती, तो उसको बोल देते हैं बेटा इमल्शन। इमल्शन, मिल्क को भी हम बोलते हैं इमल्शन,
बटर को भी इमल्शन बोलते हैं और फेस क्रीम को भी इमल्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मिल्क है ना, तो मिल्क को आप कुछ टाइम के लिए क्या करें कि मिल्क को आप कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ठीक, तो आप क्या सोचते हैं कि मिल्क स्टेबल होता है? मिल्क स्टेबल बिल्कुल नहीं होता। मिल्क को आप फ्रिज वगैरह में यानी कि अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर मत रखो। आप मिल्क को ऐसे ही छोड़ दो, ओपनली रखा हुआ छोड़ दो, तो कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे कि मिल्क का जो सॉलिड पार्टिकल है जिसको आप पनीर बोल देते हैं, वो तो नीचे जम जाएगा और ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका पानी रह जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होता है कि मिल्क का सॉलिड पार्टिकल नीचे रह जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। उस केस में क्या होता है, मिल्क अगर खट्टा हो गया, सोर मिल्क हो गया, तो वो दही बन जाता है उसका। तो दो तरीके की ये चीज़ें होती हैं मिल्क के केस में। इसमें भी क्या है कि एक तरीके का लिक्विड दूसरे तरीके के लिक्विड में मिक्स्ड है और वो आसानी से मिक्स नहीं है उसमें। बटर है, तो बटर में भी हम ये देखते हैं कि अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो बटर में से जो पानी निकलता है उस पानी को ही आपने सुना होगा, उसको बोल देते हैं छाछ। ठीक है, और छाछ को आप इंग्लिश में देखेंगे तो उसको बटर मिल्क बोलते हैं, कि मक्खन में से निकला हुआ जो मिल्क होता है, मक्खन में से निकले हुए मिल्क को यानी कि छाछ को हम बटर मिल्क बोल देते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया जिसमें लिक्विड एक दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स होता है। ठीक है, फिर ये फोम, सॉलिड फोम और जेल एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। एक्सक्यूज ओके, मी सर। हाँ जी बताइए। सर मेरा ना मंडे को मैथ का एग्जाम है और उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है। ठीक है, तो सर आप कल करा देंगे उसे? ठीक है, मेरे को बोल देना, एक बार सुबह याद दिला देना, 10-11 बजे के करीब कॉल कर लेना सुबह। ओके सर। ठीक है, चलिए जी। बाकी आप बाकी बच्चे बताइए जिनका आज पेपर था, ठीक हो गया? यस सर। आन्या, यस सर। ठीक हो गया बेटा पेपर? सर मेरा 5 को है। अच्छा हाँ सॉरी, तुम्हारा तो 5 को है। ठीक है, और सोमिल का भी 5 को है। अवनी और टिया? यस सर। अच्छा, चलिए जी, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके सर। ओके। थैंक यू ओके। सर। ओके।